if I talk of its importance, look, it is of utmost importance level, whether I consider it depending on your ampere point of view or any other employability test like OQs, metal, higher pro, litmus, or whether I consider it from the point of view of state level or central level competitive exams. So let's start the session on number system. So today we will deal with an important concept related to number system, that is how to find the digit and unit place on the expression of a certain expression. For example, if I ask you to tell me the digit at the unit place on expanding 7 to the power 2, 7 to the power 2, you will get 49 as its answer. So digit at its unit place is 9. Look, you are very familiar with this figure 7 to the power 2. What if I ask you to tell me the digit at the unit place on expanding 7 to the power 3 factor? Then what you will do? Look, there is a trick involved in it. Look, friends, if you even use the calculators of your smartphones, then also you will not be able to get the exact answer. What you will get from your calculators, that you will get at the end an error, or you will get the response in the form of E, not the digit at the unit place exactly. So let's start. Look, if we have to calculate the digit at the unit place, we should be familiar with the concept of cyclicity. That is, what is cyclicity? Suppose if I am provided with a number, let's say 2, and if I raise it with any power, let's say 1. So what you will get at the unit place? 2. If I raise it with 2, means 2 to the power 2, we will get the digit at the unit place as 4. 2 to the power 3, 8. 2 to the power 4. I am just talking of the digit at the unit place on expansion. So you will get 6 as the unit place, right? 2 to the power 5, you will get 32, means 2. 2 to the power 6, that is 64, means 4. So from now onwards, from here onwards, the digit at the unit place starts repeating. So cyclicity का concept क्या होता है? जब ये repeat होने लगे, उससे immediate पहले जो power होती है, वो उस number की cyclicity होती है, right? So 2 की cyclicity, I am writing here numbers, and here their cyclicity. So 2 cyclicity is, look, 2 to the power 5 is 32, means digit at the unit place is 2. So यहाँ से repeat होना start हो गया, so it means 2 की cyclicity क्या होगी? 4. 3. 3 to the power 1 is 3. 3 to the power 2 is 9. 3 to the power 3 is, I am talking of unit place only, that is 7. 3 to the power 4 is 81, means 1. 3 to the power 5 is, we will get again 3, and so on. So यहाँ से repeat होना start हो गया, again it means 3 की cyclicity क्या है? 4. Similarly 4. 4 to the power 1 is 4. 4 to the power 2 is 6, you will get at the unit place. 4 to the power 3 is 64, means 4, and so on. तो यहाँ से repeat होना start हुआ, it means 4 की cyclicity क्या है? 2. 5 to the power 1 is 5. 5 to the power 2 is 25, last में 5. 5 to the power 3 is 125, last में 5. So 5 की cyclicity is 1. 6 की cyclicity is, 6 to the power 1 is 6. 6 to the power 2 is 36. तो 1 के बाद ही repeat होने लगा, तो again cyclicity of 6 is 1. Cyclicity of 7, 8 and 9. 7 to the power 7 to the power 1 is 7. 7 to the power 2 is 49, last 7, last 9.
7 to the power 3 is last में 9 into 7 3 लास्ट में आएगा, then 7 to the power 4 is 3 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा, then 7 to the power 5 is again 7 आएगा, and so on. So from here I can say that the cyclicity, I am writing here again, cyclicity of all numbers two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 की cyclicity हमने क्या फाइंड की थी? 4. 3 की cyclicity क्या थी? 4. 4 की cyclicity is 2. 5 to the power any number always ends in 5. Means 5 to the power 5 की cyclicity क्या रहेगी? 1. Again 6 to the power any number always ends in 6. So 6 की cyclicity is 1. 7 की cyclicity is 4. 8 की cyclicity is, let's discuss the cyclicity of 8. 8 to the power 1 is 2. 8 to the power 1 is 8. 8 to the power 2 is last में आएगा 4. 8 to the power 3 last में आएगा 2. Then 8 to the power 4 last में आएगा 6. Then 8 to the power 5 last में आएगा again 8 and so on. So from here I can say that the cyclicity of 8 is 4. Let's discuss the cyclicity of 9. 9 to the power 1 is 9. 9 to the power 2 is 1. 9 to the power 3 again is 9 and so on. So from here I can say that the cyclicity of 9 is 2. अब हमारे पास ये सारे नंबर्स की cyclicity आ गई है, right? Now we will discuss questions based on this pattern, right? Suppose, yes, you are provided with a number 7 to the power 352. You have to find the digit at the unit place. So अब हमें इसमें क्या करना है? पावर को डिवाइड करना है बेस के यूनिट प्लेस की साइक्लिसिटी से. बेस यहाँ पे क्या है हमारा 7, ठीक है, सिंगल डिजिट बेस ये और इसका यूनिट प्लेस क्या है 7. 7 की साइक्लिसिटी हमने क्या डिस्कस की थी 4. तो अब मैं क्या करूंगा 352 को 4 से डिवाइड करूंगा. 352 को 4 से डिवाइड करने के लिए सारे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लास्ट के दो नंबर्स को चेक कीजिए बस. 52 इज डिविजिबल बाय 4. डिविजिबल बाय 4 का मतलब है इफ यू आर गेटिंग रिमाइंडर एज 0 एंड क्वोशिएंट एज एन इंटीजर, ठीक है. तो अगर ये डिवाइड हो जाता है देन यू हैव टू चेक द बेस. इफ द बेस इज even then the digit at the unit place will always be 6. If the base is odd then the digit at the unit place will always be 1, but only when the power is divided by the cyclicity of that number. That number means जो base का unit digit है उसकी cyclicity से, right? For example, same question 7 to the power 352. 352 को मैं डिवाइड करूंगा 7 की cyclicity से. 7 की cyclicity होती है 4. So 352 is divisible by 4. Numerator is 0, quotient is integer. So now I will check the base. Base here is 7. That is odd. तो इसका आंसर क्या आएगा यूनिट का 6. इसी को अगर मैं चेंज कर दूं 7 to the power 353. तो अब मैं 353 को अगेन किससे डिवाइड करूंगा 7 की साइक्लिसिटी से. 7 की साइक्लिसिटी इज 4. तो 353 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा मेरा रिमाइंडर आएगा 1. अब इस केस में क्या करना है आपको, जो ये पावर आया है उसको रिप्लेस करना है रिस्पेक्टिव रिमाइंडर के साथ. अब अगर किसी नंबर को मैं 4 से डिवाइड करूंगा और वो डिवाइड नहीं होगा, मेरे रिस्पेक्टिव रिमाइंडर से या तो 1 हो गया या 2 हो गया या 3 हो गया, तो मैं क्या करूंगा इस पावर को रिप्लेस कर दूंगा रिस्पेक्टिव रिमाइंडर के साथ. सो इन केस ऑफ 353 यू आर गेटिंग 1 एज अ रिमाइंडर, सो ये विल बिकम 7 to the power 1. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7, राइट. अगर यहां होगा 7 to the power 354, तो 54 को 354 में डिवाइड करूंगा 7 की साइक्लिसिटी दैट इज 4. तो डिवाइड करने के बाद मेरा रिमाइंडर आएगा 2. तो पावर को रिप्लेस कर दूंगा मैं 2 से. तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा यूनिट का 9, राइट. सो लेट्स डिस्कस अनदर एग्जांपल. लेट्स से 1 2 3 4 5 to the power 5 4 3 2 1. इसका आपको यूनिट प्लेस पता करना है एक्सपेंशन के बाद. तो आपको पता है बेस के यूनिट प्लेस में क्या है 5. तो 5 to the power any number always ends in 5. तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है यहां पे, राइट. सिमिलरली 1 2 3 6 to the power let's say 72. बेस की यूनिट प्लेस में क्या है आपका 6.
तो 6 टू द पावर एनी नंबर ऑलवेज एंड्स इन 6। तो चेक करने की जरूरत नहीं है। चेक करने की जरूरत नहीं का क्या मतलब है, पावर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बेस की यूनिट बेस की सेकंड सेकंड। यहां पे आंसर क्या आ जाएगा 6, राइट। लेट्स डिस्कस अनदर एग्जांपल। 1 factorial. So now we will try to discuss questions which were being asked in Microsoft, Amazon and Google, right, during campus placement studies. 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial plus 5 factorial plus 6 factorial and so on up to let's say 100 factorial. So इसको सॉल्व करने के बाद, सिंपलीफाई करने के बाद आपके यूनिट बेस पे क्या आएगा, जैसे आपका फाइंड, राइट। लो अब इसमें ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, सिर्फ नंबर्स का गेम है। ट्राई टू ऑब्जर्व इट केयरफुली। देखिए 1 factorial is 1, 2 factorial is 2, 3 factorial is 6, 4 factorial is 24, 5 factorial is what 120, right? 6 factorial is what 720। अब यहाँ पे पैटर्न है, पैटर्न क्या है, अगर 5 फैक्टोरियल आपका 120 है तो 6 फैक्टोरियल अपने आप में क्या है 6 into 5 फैक्टोरियल, राइट। 7 फैक्टोरियल अपने आप में क्या है 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल। तो अगर 5 फैक्टोरियल में 0 लास्ट में आ रहा है तो 6 फैक्टोरियल कैन कन्वर्ट्स आउट टू इंफिनिटी, उसके लास्ट में भी 0 ही आएगा बिकॉज़ 5 फैक्टोरियल उसमें ऐसा मल्टीपल आ रहा है, राइट। सो यहां से लेके अप टू इंफिनिटी इन सबका सम अगर मैं करूंगा और उसका यूनिट बेस चेक करूंगा, उसके लास्ट में तो डेफिनेटली 0 आएगा, राइट। क्या रहेगा आपके पास दिस टर्म, ये कितना है 24 plus 6 is 30, 32, 33। तो 33 plus 0 33 यूनिट बेस पे क्या आएगा 3, राइट। अंडरस्टूड। सो लेट्स ट्राई अनदर एग्जांपल। लेट्स से 1 factorial to the power 1 factorial plus 2 factorial to the power 2 factorial plus 3 factorial to the power 3 factorial, 4 factorial to the power 4 factorial plus 5 factorial to the power 5 factorial and so on up to 100 factorial to the power 100 factorial, right? Now you have to find again the digit at the unit place on expanding. 1 factorial is 1, to the power 1 is 1, 2 factorial is 2, to the power 2 is 4, right? 3 factorial is 6, 6 to the power 6. So 6 to the power 6 always ends in 6. 6 to the power any number always ends in 6. 4 factorial is 24. So 24 to the power 4 factorial आया आपके पास, ठीक है। 4 factorial क्या है 24 plus 120 to the power 120 and so on, राइट। अब 120 की पावर में कुछ भी करूंगा उसके लास्ट में 0 ही आएगा। अगला है 7 फैक्टोरियल, सॉरी 6 फैक्टोरियल, दैट इज 720। तो 0 लास्ट में आ रहा है उसके बेस पे, तो 0 टू दी पावर एनीथिंग वो 0 पे एंड होगा, तो अगेन 0। इन सब का आंसर कितना आ जाएगा समेशन के बाद 0। क्या रहेगा आपके पास ये चीज। अब ये तो 1 है आपका, दिस इज 4 6 24 टू दी पावर 24, ठीक है। 24 को आपने डिवाइड करना है 4 की साइक्लिसिटी से। 4 की साइक्लिसिटी क्या होती है 2 की साइक्लिसिटी इज 4, 3 की साइक्लिसिटी इज 4, 4 की साइक्लिसिटी इज 2। 24 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 0 आएगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। और मैं चेक करूंगा अपना बेस, बेस क्या है यहाँ पे इवन नंबर है। तो जब बेस जब पावर डिवाइड होती है और बेस इवन होता है तो यूनिट बेस तो ऑलवेज 6 आता है। तो इसको जब मैं चेक करूंगा लास्ट क्या आएगा 6। नाउ आई विल ऐड देम, इसका तो लास्ट में 0 ही आएगा। सो 6 plus 6 is 12, 12 plus 4 is 16, 16 plus 1 is 17। तो इसके लास्ट में क्या आएगा 7। क्लियर? आई होप आई अंडरस्टूड। ओके, लेट्स डिस्कस अनदर एग्जांपल। Let's say 3 to the power 60 plus 2 to the power 63, right? 60 को मैं डिवाइड करूंगा 3 की साइक्लिसिटी से। For your convenience,
I'm writing here again cyclicity of all numbers, right? 2 की cyclicity is 4, 3 की 4, 4 की 2, 5 की 1, 6 1, 7 4, 8 4, 9 2. You can recall it इस तरह से याद कर सकते हैं आप 2 3 4 5 6 7 8 9 को 4 4 2 1 1 4 4 2. So this way you can easily memorize it. Okay. So 3 to the power 60. 60 को जब मैं डिवाइड करूंगा 3 की cyclicity से, that is 4. कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो अब मैं बेस चेक करूंगा. बेस क्या है मेरा? ऑड है, तो मतलब यूनिट बेस पे क्या आएगा आपका? 1. राइट? प्लस 2 to the power 63. 63 को डिवाइड करूंगा मैं 2 की cyclicity से, मींस 4 से. रिमाइंडर क्या आएगा मेरा? 3. तो ये क्या बन जाएगा? अब मैं क्या करूंगा? अगर रिमाइंडर कुछ आ रहा है तो पावर को रिप्लेस कर दूंगा रिस्पेक्टिव रिमाइंडर के साथ. तो ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर 3 means 8. तो क्या बन गया? 1 plus 8. तो यूनिट बेस में क्या आ जाएगा आपका? 9. Similarly, for example, अगर यहाँ समेशन ना होता, माइनस वाला होता है, तो ये क्या बन जाता? 1 minus 8. So अब आंसर में 1 minus 8 means minus 7 आएगा, ऐसा कुछ. तो वो तो पॉसिबल नहीं है. It means ये 1 minus 8 नहीं है. 3 to the power 60 की कुछ एक वैल्यू है जिसके लास्ट में क्या है? 1. Similarly 2 to the power 63 की कुछ एक वैल्यू जिसके लास्ट में क्या है? 8. तो उसको जब मैं माइनस करूंगा तो ये 1 minus 8 नहीं, ये प्रीवियस वाले से कैरी होके 11 minus 8 बनेगा. So answer is 3. Right? Okay, let's try another example. It was recently asked in Amazon campus drive. Okay. 33 to the power 43 factorial. You have to find the digit at the unit place. Look, इसमें एक ट्रिक इन्वॉल्व है. ट्रिक क्या है? जब भी आपका पावर मींस एक्सपोनेंट 4 factorial, whenever your power is greater than equal to 4 factorial, जो भी आपका एक्सपोनेंट है या पावर है वो 4 factorial या उससे ज्यादा है, तो आपने सिंपली पावर को रिप्लेस कर देना है बेस के यूनिट प्लेस की cyclicity से. बेस का यूनिट प्लेस क्या है आपका? 3. 3 की cyclicity क्या होती है? 4. तो उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा, मींस पावर को रिप्लेस कर दूंगा 4 से. राइट? सो ये क्या हो गया आपका? एट लास्ट 3 to the power 4, इसके लास्ट में क्या आएगा? 1. दिस वुड बी योर आंसर. राइट? एंड व्हाट इफ इट इज लेस देन 4 factorial? सो लेट्स से अगर ये आपका 3 factorial होता, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? 33 to the power 6. राइट? यूनिट प्लेस आपको पता करना है. अब 6 को आपने डिवाइड करना है 3 की cyclicity से, मींस 4 से. रिमाइंडर आएगा 2, तो ये क्या बन जाएगा? 3 की पावर 2. लास्ट में आ जाएगा 9. अंडरस्टूड? ओके. लेट्स ट्राई अनदर एग्जांपल. 98 factorial divided by 13 factorial. Again, you have to find the digit at the unit place. So, guys, 98 factorial को मैं 98 into 97 into 96 up to 13 factorial लिख सकता हूँ. न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से 13 factorial में ही मेरा, ठीक है. ये मेरा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. आपको पता करना है digit at the unit place. अब इस एक्सप्रेशन में इवन मल्टीपल्स ऑफ 5 आएंगे, उसके अलावा बहुत से ऐसे टर्म्स आएंगे जिसके यूनिट प्लेस पे ऑलरेडी आपका 0 होगा, जैसे कि 40 50 30 एंड सो ऑन. तो अगर उनके यूनिट प्लेस पे 0 है और उनको मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट में अगेन 0 ही बनेगा. सो आंसर इज डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 0. ओके. सो अच्छा, इसको समराइज कर लेते हैं थोड़ा. अगेन numbers, cyclicity 2 3 4 5 6 7 8 9 4 4 2 1 1 4 4. ठीक है, इसको मेमोराइज करने के लिए याद रखिए 2 से लेके 9 तक की cyclicity क्या रहेगी? 4 4 2 1 1 4 4. राइट? उसके बाद हमने यूनिट प्लेस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था. उसमें एक ट्रिक क्या है, जैसे कि 5 to the power एनी नंबर,
that always ends in 5. 6 to the power any number always ends in 6. 1 to the power any number always ends in 1. 0 कोई एक नंबर है जिसके लास्ट में 0 है, उसको मैं किसी भी नंबर से रेस करूं, लास्ट में आएगा 0, राइट? तो 5 6 1 0 का केस याद रखिए। उसके अलावा 4 का केस और 9 का केस, इसमें भी एक ट्रिक इन्वॉल्व है। 4 टू द पावर अगर आपका ऑड नंबर होगा वो ऑलवेज 4 पे एंड होगा। सिमिलरली 4 टू द पावर अगर कोई भी इवन नंबर होगा, कोई भी इवन नंबर, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कुछ भी, तो वो ऑलवेज एंड होगा 6 पे। 9 टू द पावर ऑड नंबर ऑलवेज एंड्स इन 9. 9 to the power even number always ends in 1. This you have to recollect in any way. Okay, so 5 6 1 0 4 9 इसके केसेस, अगर इस केस को, इनके केसेस को याद रखिए। रह गए आपके सिर्फ 2 3 7 एंड 8। तो अगर बेस के यूनिट प्लेस में 2 3 7 8 है और आपको यूनिट प्लेस पता करना है एक्सपेंशन के बाद, तो डिवाइड वाला कांसेप्ट यूज कीजिए। मींस पावर को डिवाइड कीजिए बेस के यूनिट प्लेस की साइक्लिसिटी से। अगर डिवाइड हो जाता है तो बेस चेक कीजिए। बेस अगर आपका इवन है तो 6 से आंसर यूनिट प्लेस का, बेस अगर आपका ऑड है तो यूनिट प्लेस का आंसर इज 1। अगर पावर डिवाइड नहीं हो रही है तो जो भी रिमाइंडर आ रहा है साइक्लिसिटी से डिवाइड करने के बाद पावर को रिप्लेस कर दीजिए उस रिस्पेक्टिव रिमाइंडर के साथ, फिर आपका यूनिट प्लेस का आंसर आता है। ओके, थैंक यू, दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर योर टाइम।